حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس نے بلی کو پال رکھا تھا، لیکن ہاتھوں سے کھانے کے لیے کچھ دیتی نہیں تھی، نہ ہی اسے پینے کے لیے کچھ دیتی، اور نہ ہی وہاں سے آزاد کرتی تاکہ وہ خود زمین پر گرنے والے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ پالے، اور وہ عورت اس بلی پر ظلم کرتی تھی، تو یہ عورت اسی کے چلتے عذاب میں مبتلا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو کا ریئیکشن دینے والے ہیں دوستوں، نور حدیث چینل کا نام ہے، اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، اور آپ لوگ ان کا سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو انت تک دیکھیے۔ دوستوں آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی بہترین ہے، بڑی پیاری بھی ہے اور بڑی عبرت والی بھی ہے۔ دوستوں آج ہم جانیں گے بلیوں کے بارے میں کہ بلیوں کو پالنا کیسا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، یا اس کو پالنے سے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اور تمام جانوروں کو خیال رکھنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سب کچھ جانیں گے، کیونکہ اکثر لوگوں گھروں میں زیادہ تر دیکھیں گے آپ بلیاں پلی ہوتی ہیں۔ تو اسی ٹاپک پہ یہ ہمارا پورا فل ویڈیو ہے دوستوں، ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جانتے ہیں اس کی پوری حقیقت، پوری سچائی۔ تو ویڈیو کو اچھی لگا کرے، شیئر بھی کیا کریے، لائک سبسکرائب کیا کریے۔ تو چلیے آئیے بنا دیری کی پوری حقیقت جانتے ہیں کہ بلیوں کو پالنا کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ یا جو بھی ہے۔ تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ تو بلیوں کو جانور مانتے ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے مطابق بلیاں کچھ اور ہی ہے، اور ایسا ماننے کی ان کے پاس ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلام کی روشنی میں بلیوں کے بارے میں کچھ حیران کر دینے والے رازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بلیوں کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کہ کیا واقعی میں بلیاں ہمیں دولت مند بنا سکتی ہے؟ بلی اگر راستہ کاٹے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا بلی کے رونے سے کسی گھر والے کی موت ہو جاتی ہے؟ بلی اور جنات کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ بلی کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا راز بتائے؟ بلی کو گھر سے بھگانے والوں کو کون سی بددعا لگتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے بلیوں کے ساتھ ایسا کیا کرنا ہے کہ بلی آپ کے لیے دولت، برکت اور رحمت لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے آپ کو صرف انسانوں کا رب نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف تمام جہانوں کا رب ہے، بلکہ اس جہانوں میں جتنی بھی مخلوقات رہتی ہے ان تمام کا بھی رب ہے۔ ان مخلوقات میں انسان کے علاوہ جنات، فرشتے، شیاطین اور جانور بھی شامل ہے، اور بھی نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقیں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں۔ تمام ہی بزرگوں یعنی اللہ کے ولیوں میں اگر کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ کی تمام ہی مخلوق کو بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا اور ہر ایک مخلوق کی بولی بھی جانتا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ بلکہ بابا فرید کی تو کرامت ہی یہی تھی کہ آپ چڑیوں سے باتیں کرتے تھے، آپ خود بھی چڑیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور چڑیا بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی۔ لیکن بابا فرید صرف چڑیوں سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی دوسری مخلوقات ہے جن میں بلیاں بھی شامل ہے، نہ صرف ان کی باتیں ہی سمجھ سکتے تھے بلکہ ان سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ بابا فرید کا روٹین ہوا کرتا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ چڑیوں کو دانہ ڈالتے تھے، جس کے بعد بہت ساری چڑیا آپ کے آس پاس جمع ہو جایا کرتی تھی۔ اب دوستوں بلی کیونکہ ایک شکاری جانور ہے تو بہت ساری چڑیوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد بلیاں بھی وہاں آ جایا کرتی تھی، اور اکثر بلیاں چڑیوں پر حملہ کر کے چڑیوں کو پکڑ کر کھانے کی کوشش کرتی تھی۔ بابا فرید نے اپنے پاس ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، جب بھی کوئی بلی چڑیوں کو کھانے آتی تو بابا فرید اس کپڑے کو اکٹھا کر ایک گیند سا بنا لیتے اور کپڑے کا وہ گیند بلی پر مار دیتے تاکہ بلی بھاگ جائے۔ ایک دن بابا فرید کا خدمت گزار کہنے لگا کہ آپ بار بار بلیوں کو کپڑے سے مار کر بھگاتے ہیں، اس سے تو بلیوں کو ذرا بھی چوٹ نہیں لگتی، یہی وجہ ہے کہ بلیاں بار بار واپس آ جاتی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ بلی کو جوتی پھینک کر مارے، ایک دفعہ بلی کو جوتی لگے گی تو دوبارہ بلی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی بابا فرید کو بہت زیادہ غصہ چڑھا، اور بابا فرید غصے میں اپنے خدمت گزار کو کہنے لگے کہ میں تجھے نہ جوتی سے ماروں، خبردار دوبارہ اپنے منہ سے بلی کے بارے میں کبھی ایسی بات نکالی تو۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کو مارنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں بلکہ آپ کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی بلی کو مارنا بھی ہو تو روئی کا گولا بنایا جائے اور اس روئی کے گولے سے بلی کو مار کر بھگایا جائے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ میں نے بلیوں میں دو چیزیں دیکھی ہے جن کے بعد نہ صرف میں بلیوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں بلکہ ان سے ڈرتا بھی ہوں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلی کے اندر جو پہلی چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلی کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے جتنی ہر سال حج کرنے اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کی بھی نہیں کرتا، اسی لیے میں بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ لیکن بلیوں میں جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کی بددعا بھی اتنی تیزی سے لگتی ہے جتنی کہ کسی مظلوم کی بددعا، اور یہی وجہ ہے کہ میں بلیوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بلیوں کے ساتھ کچھ برا نہ کر دوں جس کے بعد بلیوں کی بددعا مجھے بھی لگ جائے۔ یعنی میرے نور حدیث چینل کے پیارے ویورز، اگر کوئی بلی آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کو دعا دیتی ہے، تو بلی کی وہ دعا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لگے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلی آپ کو بددعا دے دیتی ہے تو اس چیز کا بھی یقین رکھے کہ وہ بھی آپ کو ضرور لگے گی۔ ایک اور جگہ بابا فرید کا بلیوں کے بارے میں کہنا تھا کہ میں نے بہت بار بلیوں کی شکل میں جنات کو دیکھا ہے، لیکن بلیوں کی شکل میں جو زیادہ تر جنات گھوم پھر رہے ہوتے ہیں
वो अच्छे और नेक जिन्नात होते हैं जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं होते, बल्कि बिल्लियों की शक्ल में घूमने वाले ज्यादातर जिन्नात इंसानों के लिए दोस्ताना होते हैं और अच्छे होते हैं और इंसानों की भलाई चाहते हैं, और ज्यादातर जिन्नात जो बिल्लियों की शक्ल लेकर घूम रहे होते हैं वो मुसलमान होते हैं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के बाद दूसरे जिस जानवर की शक्ल में मैंने जिन्नात को सबसे ज्यादा आते देखा है वो है काला कुत्ता, जिस पर सफेद दाग हो। लेकिन काले कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके जो ज्यादातर जिन्नात आते हैं वो बुरे जिन्नात होते हैं जो कि इंसानों के सख्त दुश्मन होते हैं, और कुत्ते की शक्ल में आने वाले जिन्नात ज्यादातर मुसलमान भी नहीं होते। एक दिन एक शख्स बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बहस करने लगा। उस शख्स का कहना था कि आप हर वक्त चिड़ियों और जानवरों की बातें करते रहते हैं, भला हम इंसानों और जानवरों का क्या मुकाबला, ये जानवर तो हमारी खिदमत के लिए पैदा किए गए। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना था कि तुम्हारे और इन जानवरों के दरमियान सिर्फ कपड़ों का फर्क है, अगर तुम्हारे जिस्म पर कपड़े मौजूद ना हो तो तुम भी जानवर ही हो। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के अंदर 4 बातें पाई जाती है और इन 4 बातों की ही वजह से अल्लाह ताला बिल्ली को बेहद पसंद करते हैं। पहली बात ये कि बिल्ली का ताल्लुक शेर के खानदान से है और शेर की ही तरह बिल्ली किसी से भी नहीं डरती, और जिस तरह शेर बहुत अक्लमंद जानवर होता है इसी तरह बिल्ली में भी बहुत ही ज्यादा अकल पाई जाती है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज साइंस भी इस चीज को मानती है कि बिल्लियों के अंदर बहुत ही ज्यादा अकल पाई जाती है और बिल्ली हर बात को समझ सकती है, और आप जो कुछ भी बिल्ली से कहते हैं या बिल्ली के सामने करते हैं, बिल्ली को पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के अंदर जो दूसरी बात जो पाई जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बेहद पसंद थी, बल्कि कुछ रिवायतों में तो हमें यह भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्ली पाल रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्लियों से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि एक बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी तो आप पानी का बर्तन उसके सामने औंधा कर दिया करते थे ताकि वो आसानी से पानी पी लिया करे, और जब वो पानी पी लेती थी तो आप उसी पानी के बर्तन के पानी से वुजू कर लिया करते थे। जिससे ये बात भी हमें पता चल जाती है कि बिल्लियां नापाक जानवर नहीं बल्कि ये एक पाक जानवर है, और यही वजह है कि फिर चाहे मक्का हो या मदीना या मस्जिद नबवी ही क्यों ना हो, आपको बिल्लियां आम घूमती फिरती नजर आ जाती है। ना तो बिल्लियों को मस्जिद नबवी में आने से मना किया जाता है और ना ही किसी दूसरी मुकद्दस जगह में, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती हमारे मुल्क में ऐसे कुछ लोग जरूर है जो अपने घर में बिल्लियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही कोई बिल्ली उनके घर में आ जाती है तो वो जूती चप्पल या जो कुछ उनके हाथ में आता है, बेशक पत्थर ही क्यों ना हो, वो उठाते हैं और बिल्ली को दे मारते हैं। और शायद हमारी इस्लाम से यही दूरियां है कि आए दिन हम पर मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। जबकि बाबा फरीद के मुताबिक बिल्ली के अंदर जो तीसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली कभी भी किसी इंसान को अपना मालिक नहीं मानती। बेशक आप बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर पाल ले, जिस किसी ने भी बिल्ली को रखा होता है, बिल्ली उसे प्यार करती है, उसके साथ खेलती है, लेकिन कभी भी उसको उस तरह से मालिक नहीं मानती जिस तरह से कुत्ता अपने पालने वाले को मालिक मानता है। बिल्ली की फितरत में ये चीज पाई जाती है कि बिल्ली सिर्फ अल्लाह को मालिक मानती है, अल्लाह के सिवा वो किसी को मालिक नहीं मानती। जबकि बिल्ली के अंदर जो चौथी खूबी मौजूद है कि बिल्ली ने अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की थी। जैसे कि आप जानते ही है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी जिस पर इंसानों समेत जो कि अल्लाह ताला के फरमाबरदार इंसान थे उनके अलावा तमाम जानवरों की एक एक जोड़ी को सवार कर लिया था। जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब की शक्ल में आजाब नाजिल किया था जिसमें वो कौम बह गई थी। लेकिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में थी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर एक चूहा और चूही की जोड़ी मौजूद थी जिन्होंने बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर दिया। जिसके बाद कश्ती पर चूहे ही चूहे हो गए। ये चूहे कश्ती पे मौजूद अनाज को भी खाने लगे और कश्ती में सुराख भी करने लगे। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हो गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इसके बारे में दुआ की कि जिसके बाद अल्लाह ताला ने एक बिल्ला और बिल्ली की जोड़ी भेजी और उस बिल्ला और बिल्ली की जोड़ी ने कश्ती पर मौजूद ज्यादा चूहों को खत्म कर दिया। बाबा फरीद का कहना था कि ये 4 चीजें बिल्ली को बहुत ज्यादा अफजल जानवर बना देती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में बिल्ली और दौलत का कोई आपस में ताल्लुक है। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि फलाना शख्स बिल्लियों को खाना या पानी डाला करता था या उनसे प्यार किया करता था, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदले जैसे हालात बदलने का हक बनता है। और प्यारे बहन भाइयों, ऐसी कहानियां सिर्फ आपने ही नहीं बल्कि मैंने भी सुनी। पूरी जिंदगी ऐसी कहानी सुनता भी आ रहा हूँ और खुद अपनी आंखों से देख भी रहा हूँ। बल्कि मैं खुद आपको इस चीज की गवाही दे सकता हूँ कि जो कोई भी बिल्लियों का ख्याल रखता है, उनसे प्यार करता है या फिर उनके खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखता है, लेकिन बिल्कुल बेलौस होकर, तो यकीनन अल्लाह ताला की उस पर रहमत होती है। अल्लाह ताला उसके घर में बरकत, उसकी जिंदगी में, उसके पैसों में बरकत डाल देते हैं। उस इंसान की रिज्क की तंगी को खत्म कर दिया जाता है, उसके रिज्क को बढ़ा दिया जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि जब कोई भी इंसान गैर मखलूक यानी दूसरे जानवरों और जानदारों का ख्याल रखना शुरू कर देता है सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, तो अल्लाह ताला दूसरे जानवरों का रिज्क उससे वाबस्ता कर देता है। अगर उस इंसान की किस्मत में बहुत कम रिज्क लिखा था तो उस इंसान को दूसरी मखलूकों के नसीब का रिज्क भी मिलने लगता है। लेकिन कुछ जानवर
क्योंकि दूसरे जानवर से ज्यादा अफजल होते हैं, जैसे कि परिंदे हो गए और खासकर बिल्लियां हो गई। इसीलिए अगर आप परिंदों और बिल्लियों का ख्याल रखते हैं, इनसे प्यार करते हैं और अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप इनके लिए खाने पीने का ख्याल रखते हैं, इनको खाने पीने के लिए कुछ डालते रहते हैं, या फिर आपके घर में जो भी बचा कुचा खाने पीने का सामान होता है आप इन परिंदों और बिल्लियों वगैरह को डालते रहते हैं, तो इनके सदके आपके रिज्क में बेपनाह इजाफा हो जाता है और आपके जितने भी रिज्क और दौलत के मसले हैं वो ऐसे दूर होने लगते हैं कि आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। बाबा फरीद का कहना था कि जब भी कोई शख्स अल्लाह की गैर मखलूक यानी जानवरों को खाना पानी डालना शुरू करता है या इनसे सिर्फ प्यार ही शुरू कर देता है तो जो सबसे पहले उसके साथ जो चीज होती है कि उसके घर में और उसके पैसे में बरकत आने लगती है। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है, अल्लाह ताला की रहमत उस पर बरसने लगती है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए आसानियां पैदा होने लगती है, उसकी जितनी भी बंदिशें होती है वो दूर होने लगती है, जबकि तीसरे नंबर पर उसके रिज्क में इजाफा होने लगता है और चौथे नंबर पर वो दौलतमंद होने लगता है। इसीलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क, दौलत इन दोनों चीजों के हवाले से परेशान हैं या आप अमीर और दौलतमंद होने की ख्वाहिश रखते हैं तो अल्लाह की जितनी भी मखलूकें हो, फिर चाहे वो परिंदे हो, बिल्लियां हो, उनका ख्याल रखें। लेकिन आपने अल्लाह ताला की मखलूकों से बेलौस होकर प्यार करना है, बेलौस होकर उनका ख्याल रखना है। अगर आप ये सोचकर करेंगे कि आज मैं इनको दाना पानी या खाना डालना शुरू करूं और कल मुझे दौलत और रिज्क मिलना शुरू हो जाए तो ये आपकी भूल है। अगर आप बेलौस होकर अल्लाह ताला की मखलूक से प्यार करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तभी आपको फल लगेंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों की जितनी भी मुश्किलें हैं और परेशानियां हैं उनको दूर फरमाए, उनके घरों में जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने पालने वाले के साथ हमेशा जुड़ी रहती है और बरसों बाद भी उसे पहचान कर उसके साथ मोहब्बत का इजहार करती है। और आजकल तो हर घर पर बिल्ली का होना एक फैशन बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक बच्चा सो रहा है और बच्चे की उम्र महज 3 से 4 माह की होगी, जबकि इसके पास एक बिल्ली मौजूद है और ये एकदम इस बच्ची पर या इस बच्चे पर हमला कर देती है। जब से ये वीडियो सामने आई है तो उसके बाद जो बात चल रही है वो ये कि जिस तरीके से शहरों में कुत्तों को जहर देकर खत्म किया जाता है, इसी तरह से बिल्लियों को भी खत्म किया जाना चाहिए। बात यह है कि जो तरीका कुत्तों को खत्म करने के लिए अपनाया जा रहा है वो भी गलत है। किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने या उसको मार देने की इजाजत हमारे दीन में नहीं है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैयद मंसूर अहमद शाह ने काफी अरसा मदीना में गुजारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात का मुशाहिदा किया और फिर एक किताब लिखी जिसमें वो तमाम हालात बयान करते हैं। मंसूर अहमद साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट ने हज किया और हज करने के बाद वो मदीना पाक आए। फिर एक साथ ही सबके साथ उठना बैठना होने लगा और खाना पीना भी एक साथ करते थे। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उस खुले दरवाजे से एक बिल्ली अंदर आई। बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ हमने उस बिल्ली को रोटी दे दी, जो कि हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना के कांटों से भी प्यार था और ये तो फिर भी एक बिल्ली थी। जब हमने बिल्ली को ये रोटी पेश की तो उसने कबूल कर ली और उसके बाद अब होने ये लगा कि बिल्ली अगले रोज फिर आ गई और हमने उसे रोटी खिला दी। उसके बाद अब हर रोज उस बिल्ली का ये रूटीन बन गया। ये मोहब्बत यहाँ तक बढ़ गई कि उस ब्यूरोक्रेट ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस जाते हुए इस बिल्ली को अपने साथ ले जाएंगे और फौरी तौर पर उन्होंने अपने तमाम पहचान का इस्तेमाल किया और कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और तमाम जरूरी जगहों से इजाजतनामे हासिल किए और एक अलीशान सा पिंजरा तैयार करवाया और अब बिल्ली के पाकिस्तान जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अगले रोज सुबह की फ्लाइट से उस ब्यूरोक्रेट को मदीना से वापस अपने देश रवाना होना था और उस रात जब वो सोए तो नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से तुम खैर व आफियत से यहाँ आए हो ऐसे ही वापस चले जाओ, बस हमारी बिल्ली साथ में मत ले जाना। उस हाजी साहब ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस मदीने की बिल्ली को अपने साथ में ले जाऊं। ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 4 रातें गुजर गई है, ये बिल्ली सारी सारी रात बैठकर तुम्हारे कमरे के बाहर रोती है और अर्ज करती है कि हुजूर मदद फरमाइए, ये मुझे मदीना से दूर ले जा रहे हैं। दोस्तों, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी उनसियत हो, तो इतना प्यार हो और प्यारे नबी उसके पाकिस्तान जाने के मुताल्लिक ब्यूरोक्रेट को मना कर रहे हैं और अगर कोई शख्स नबी का नाम लेवा रो रो कर दुआ करे, उनकी सुन्नतों पर अमल करे, सुन्नत को अपनाए और हदीस मुबारक को अपनी जिंदगी में शामिल करे, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स की बख्शिश ना करे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की शिफात क्यों ना करेंगे। दोस्तों, समाज में कुछ मनगढ़ंत और बेहुदा बातें कही जाती है, जैसे कि बिल्ली का रोना बदशगुनी होता है। जिस घर में बिल्ली के रोने की आवाज आए तो समझ लीजिए कि किसी की वफात का पैगाम है। बड़ों के किस्से कहानियां ऐसी ही मशहूर है जिनमें बताया जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उस पर भी बड़े मनगढ़ंत किस्से कहानियां और बिलीफ है, और बिल्ली रास्ता काट ले तो इसका मतलब यह है कि कुछ बुरा होने वाला है। और कोई शख्स किसी सफर पर रवाना हो रहा है तो उसे चाहिए कि वह फौरी तौर पर अपने सफर को रोक दे। बिल्ली इंसान से मोहब्बत करती है, ये उसका इंसान से बेहद लगाव है। तो दूसरी तरफ भी ये बात भी मशहूर है और देखा गया है कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने पालने वाले के साथ हमेशा मानूस रहती है और बरसों बाद भी उसे पहचान कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। लेकिन अगर बिल्ली की बात की जाए तो बिल्ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जानवर था और इसका तज़किरा मुख्तलिफ अहादीसों में मिलता है। यहाँ तक कि अगर बिल्ली कुछ खाने में से कुछ खाना खा जाए, वो खाना पलीद और नापाक नहीं होता बल्कि पाक रहता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक औरत
कुछ खाने की चीज़ देने आई। जब वो पहुंची तो देखा कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही है। जैसे ही वो औरत चीज़ रख कर निकली तो एक बिल्ली आई, उसने एक तरफ से उस चीज़ को खाना शुरू कर दिया। नमाज के बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी जगह से उसे खाया जहाँ से बिल्ली खा रही थी, और फिर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना है कि बिल्ली पलीद या नापाक नहीं है, और मैंने देखा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिल्ली के पीने के बचे हुए पानी से वजू किया करते थे और कहा करते थे कि ये तुम पर हलाल है, पाकीज़ा है और नापाक नहीं है। दोस्तों, एक हदीस में यह भी आता है कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब में मुब्तला कर दिया गया। उसने बिल्ली को पाल रखा था, लेकिन हाथों से खाने के लिए कुछ देती नहीं थी, ना ही उसे पीने के लिए कुछ देती, और ना ही वहां से आजाद करती ताकि वो खुद जमीन पर गिरने वाले कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट पाले। और वो औरत इस बिल्ली पर जुल्म करती थी, तो ये औरत इसी के चलते आजाब में मुब्तला हो गई। प्यारे दोस्तों, अरबी में हुरैरा का मतलब बिल्ली होता है, और इसे आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी याद आए होंगे। उनकी बिल्लियों से मोहब्बत के चलते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अबू हुरैरा का लक़ब दे दिया, और फिर वो इस नाम से इतने मशहूर हुए कि उनके असल नाम को लेकर उलमा और इतिहासकारों में इतना इख्तिलाफ पाया जाता है कि 30 के करीब मुख्तलिफ नाम बताए जाते हैं। आखिर सब ने उनके लक़ब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर इत्तेफाक किया। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा बिल्लियों के ताल्लुक से। दोस्तों, जानवर इस तरह के पालना ये सही है, गलत नहीं है, और इनका ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है। जानवर आप पाले हों तब भी, अगर नहीं पाले उसके बाद भी उनका ख्याल रखते हो खाने पीने का, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, आप इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है दोस्तों, और जैसे कि परिंदे हैं और ये पानी की तलाश करते हैं, तो कोशिश करें अपने छतों पे पानी का इंतज़ाम कर दें, किसी मिट्टी के बर्तन में पानी किनारे रख दें छाए में, ताकि ये परिंदे उन्हें आके देखें और पी लें, तो आपका सवाब के हकदार हो जाएंगे दोस्तों ये। तो इस तरह से करें तो बहुत अच्छी बात है ये, और ऐसा करना चाहिए। उनको, परिंदों को तकलीफ नहीं देना है, खाने पीने का पालना भी है, तो उनके जिम्मेदारी से उनको रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है, हर चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपको इंशाल्लाह चाहे तो इसका फ़ायदा भी मिलेगा, और ये अच्छी बात भी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी बिल्लियों के ताल्लुक से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।